तो अभी हम यहाँ हैं, राइट नाउ वी आर हियर। तो हम जानते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हमें अच्छा आइडिया है, वी नो व्हाट इज इनर्शिया, एंड obviously Newton's law is rightly called law of inertia, Newton's first law actually. So there are three types of inertia, तीन तरह के inertia होते हैं: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. तो inertia का मतलब हम जानते हैं कि inertia का मतलब होता है inability to change या resistance to change in the state, correct? तो inertia of rest मतलब resistant to the change in the state of rest. Inertia of motion का मतलब it means resistance to the change in state of motion. So अगर particle motion में है तो rest में नहीं आना चाहता है. And this is special inertia of direction. Inertia of direction मतलब particle जो है वो straight line में ही move करते रहना चाहता है, bend नहीं होना चाहता, turn नहीं होना चाहता है खुद से. So particle wants to continue moving in a straight line with constant velocity, does not want to bend or turn unless a force compels it. So let's see these things in detail. So inertia of rest means resistance of a body to change in the state of rest. Motion means resistance to the change in the body in the state of motion. And direction means resistance to the change of the body in the inertia of direction. So this is an example of a body at rest, and it tends to remain at rest forever unless you apply and net external force in it. Okay. Similarly, this diagram tells you that a body is already in motion with constant velocity v, and it does not want to change the magnitude of v or direction of v. It does not want to change anything. And similarly in this case, यहाँ पर भी वही है कि particle move कर रहा है straight line में. Particle is moving in a straight line, and it wants to move in a straight line forever. Particle हमेशा के लिए इसी velocity से इस straight line में move करना चाहता है forever. तो does not want to deflect from its path to left right, कहीं भी deflect होना नहीं चाहता है. ओके. अब मैं आपको स्पेशल कंसेप्ट बताना चाहता हूं कुछ, कि सर्कुलर मोशन होता ही क्यों है, व्हाई देयर इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सर्कुलर मोशन. सबसे पहले आपको समझना है परपेंडिकुलर क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय परपेंडिकुलर. हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये हो गया परपेंडिकुलर. वी नो दैट इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन देन व्हाट इज परपेंडिकुलर. बट एक कर्व में परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है. So if you have a curve, then what is the meaning of perpendicular? If you have a curve, then choose a point. एक point को choose कीजिए आप और tangent draw कर दीजिए. Draw a tangent at this point. तो perpendicular और normal same thing. Perpendicular और normal at the point P का मतलब है ये. So perpendicular at the point P means perpendicular to the tangent at that point. This is tangent. This is perpendicular. Perpendicular is also called normal. Perpendicular to the tangent is called normal. That is why normal reaction, normal force, you remember that. So if you choose some other point, अगर कोई और point आप choose करते हो तो आपको new tangent draw करना होगा. You have to draw a new tangent, and now this is the perpendicular or normal. अब ये perpendicular हो जाएगा, new perpendicular. तो ये आपको समझ में आ गया. ये important है before we start. Why सर्कुलर मोशन हैपेंस, क्यों सर्कुलर मोशन होता है.
So suppose we have a straight line here, particle is moving in a straight line with velocity v, and you apply a perpendicular force on it. आपने यहां पर perpendicular force apply किया तो क्या होगा? Perpendicular force का क्या effect होगा? What will be the effect of this perpendicular force? The effect of this perpendicular force will be that the particle will turn. If the particle turns a little, अगर पार्टिकल थोड़ा सा भी टर्न होता है और फिर से आप परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हो फोर्स, राइट, लाइक दिस, जैसे मैंने यहां सिखाया है, तो वो थोड़ा और टर्न करेगा और फिर से आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, आपका फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, योर फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, देन इट विल कीप टर्निंग, it will keep turning, it will keep turning till it completes one circle and the circular motion begins, and the force is being applied at every point of the particle, at every point wherever the particle is, जहां भी पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है। ऐसा अगर कोई सिचुएशन है तो पार्टिकल फोर्स्ड हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, कंपेल्ड हो जाएगा टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। तो ये आपको याद रखना, दैट इज द बेसिस ऑफ सर्कुलर मोशन। और एक बात, तो स्पीड क्या होगा इस सर्कुलर मोशन का? स्पीड क्या होगा? सपोज एट दिस पॉइंट जहां पर पहली बार फोर्स अप्लाई हो रहा था वहां पर स्पीड v है। At this point where the first force was being applied for the first time, let the speed be v. तो बाकी के मोशन में सेम स्पीड होगा, in the remaining motion particle will have same speed. Answer is y. Why same speed? तो I will explain that answer. Why same speed भी हम बताएंगे। तो फर्स्ट इस डायग्राम को देखिए कि ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो एट एन एंगल थीटा, ठीक है, and you are applying a force at an angle theta, so what will be the component of force along this direction? We know that component of force जो होगा वो f cos theta, component of force is f cos theta, right? Okay, so along this direction, इस direction में f cos theta act करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि net external force कितना है? f cos theta है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो कोई एक्सेलरेशन भी होगा ही, हम इसको मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल लिख सकते हैं, इतना आइडिया है आपको। तो यहां पर वेलोसिटी सेम नहीं होगा, वेलोसिटी विल नॉट बी सेम, हमें प्रूफ करना है कि वेलोसिटी विल बी सेम। इन दिस केस वेलोसिटी विल नॉट बी सेम, velocity will not be same because there will be some acceleration, there will be some acceleration, कुछ acceleration होगा। क्यों acceleration होगा? f cos theta के वजह से, because of the f cos theta there will be acceleration. Why there is f cos theta? Because force is applied at an angle theta. Okay, ये भी समझ में आ गया, you have understood this. Now consider another situation, एक और situation देखिए जहां पर फोर्स अगर 90 डिग्री एक्ट कर रहा है, कितना डिग्री? 90 डिग्री, तो ये थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, दिस थीटा इज नाउ 90 डिग्री। So what I can say now, f cos theta will be how much? This f cos theta, component of force in this direction, component of force इस direction में f cos theta है, मतलब f cos 90 and cos 90 is 0। तो फाइनली क्या आ गया? there is no force in this direction, तो f net external in this direction is 0। अगर f net external 0 है तो in this direction मतलब there is no acceleration, नो एक्सेलरेशन मतलब v कांस्टेंट, हम जानते हैं नो एक्सेलरेशन मतलब dv dt 0, dv dt 0 मतलब v कांस्टेंट, इतना हमें पता है। v कांस्टेंट का मतलब हुआ v सेम, और हमने प्रूफ कर दिया कि स्पीड सेम रहेगा अगर एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो वी हैव प्रूफ दैट द स्पीड विल बी सेम इफ अ परपेंडिकुलर फोर्स इज एक्टिंग
to the particle. If a force is perpendicular to the motion of the particle, to the velocity of the particle, so ऐसा अगर कोई सिचुएशन है कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहे टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन माने वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सो इफ एनी सच सिचुएशन is created where the force is always perpendicular to the motion of the particle, matlab means velocity of the particle, then particle will always move with the same speed, same. So our inference is, our conclusion क्या है कि particle का force अगर perpendicular to the velocity है always, then uniform, uniform मतलब same speed, circular motion होगा. So this is why circular motion happens. So आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया. जब हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे तो ये आइडिया आपको बहुत ही काम में आएगा, एक बेस बन गया हमारा. सो व्हेन वी विल स्टार्ट सर्कुलर मोशन दिस विल हेल्प यू. तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है जहां दिखा रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द velocity of the particle. So in uniform circular motion only direction of the velocity changes, लेकिन उसका magnitude always remains constant, and direction always changes, और डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो रहा है कि वो सर्कुलर मोशन हर एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट, हर पॉइंट में डायरेक्शन टेंजेंट, किसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और हर पॉइंट में फोर्स भी परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट में वेलोसिटी टेंजेंट, हर पॉइंट में फोर्स परपेंडिकुलर, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. ये सिचुएशन है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. तो ये आइडिया हो गया. तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक स्पेशल केस है. स्पेशल केस क्या है यहाँ पर, ये पूरा अगर आप रीड करेंगे तो ये बता रहा है कि एक रोप है, दिस इज एक रस्सी है, रोप है, जिसके हेल्प से मास m, स्टोन ऑफ मास m, एक स्टोन जिसका मास m है सपोज, उसे घुमाया जा रहा है इस तरह से, इस तरह से घुमाया जा रहा है. ठीक है भाई, इस तरह से घुमाया जा रहा है. तो क्वेश्चन है, अगर ये रस्सी को कट कर दिया जाए, स्टोन घूम रहा है, रस्सी को अचानक कट कर दिया आपने, तो स्टोन इज मूविंग एंड यू हैव कट द रोप, व्हाट विल हैपन, वेयर विल द स्टोन फ्लाई, स्टोन किस डायरेक्शन में मूव करेगा कट करने के बाद, क्या कट करने के बाद भी वो सर्कुलर मोशन ही करता रहेगा या कि कहीं और जाएगा, वेयर विल इट गो, दैट इज आवर क्वेश्चन. So we are going to answer the question. The answer, it will fly tangentially. Why tangentially? Why tangentially is our question. ठीक है, so I will answer that. हम उसका आंसर दे रहे हैं. सबसे पहले पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो कभी ना कभी तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था. Before circular motion it was moving in a straight line, yes. Then you started applying a perpendicular force, आपने perpendicular force apply करना शुरू कर दिया और वो circular motion में move करना start कर दिया. यहाँ तक भी ठीक है, it's okay here, yes. So at this point, इस point में भी वो perpendicular force काम कर रहा है, हाँ भाई काम कर रहा है, yes it's working, perpendicular force is working at every point. And at this point velocity is along the tangent, absolutely correct, velocity tangent में ही है. तो अगर आप इस रस्सी को कट कर दोगे, if you cut this rope, then this force is gone, ये force चला जाएगा, this force is gone, no more force, ये force चला गया, कोई force नहीं है. तो बचा क्या, बचा, we are left with a stone of mass m which has instantaneous velocity v. So from Newton's law we know that no more force, F is 0, so acceleration is 0, so v will be constant and particle will move in a straight line forever with this velocity, and that straight line is what, the initial straight line, जो starting में जो straight line था उस straight line से वो move करेगा the particle
टेंजेंशियली फॉरएवर। इसलिए पार्टिकल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, पार्टिकल टेंजेंट डायरेक्शन में मूव करते, जहां भी आप कट कीजिए। अगर पार्टिकल यहां पर है, इस पोजीशन में है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा टेंजेंट, आप उसे कट कर दीजिए, फोर्स चला गया, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाएगा, उड़ जाएगा, पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ इन दिस डायरेक्शन। So that is the logic. So these simple logics and concept will build your base and will help you in solving numericals also. Example 1. Okay. An astronaut is accidentally it gets separated out of a small spaceship. यहां तक पहले समझते हैं। यानी एक स्पेसशिप है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन सो एंड सो। ओके, एक स्पेसशिप है जो इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। स्पेसशिप आपको पता ही है, अर्थ के बाहर स्पेस में, ठीक है भाई। इट वाज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब इट्स वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग 100 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में उसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा था, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था एवरी सेकेंड, ठीक है भाई। तो एट ए पर्टिकुलर टाइम एस्ट्रोनॉट सेपरेट हो गया, इट गॉट सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप। तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है, क्वेश्चन बाद में देखते हैं क्या होगा। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट सेपरेट हो गया, सपोज एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, जब वो सेपरेट हो रहा था तब स्पेसशिप का वेलोसिटी v है। तो जब एस्ट्रोनॉट सेपरेट हो गया तो उसका भी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v होगा अलोंग दिस डायरेक्शन। यहां तक तो सिंपल है, समझ में आ गया। अब क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, इस एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन क्या है एट द इंस्टेंट, उस वक्त, आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, जिस वक्त स्पेसशिप से वो बाहर निकल गया, एक्सीडेंटली सेपरेट हो गया उस स्मॉल स्पेसशिप से, उसका क्या है एक्सेलरेशन। मुझे एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन चाहिए। तो जितना मैंने समझाया है वही हिंट है, वट एवर हैव एक्सप्लेन्ड द हिंट इज देयर, कि जब एस्ट्रोनॉट सेपरेट हो गया तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है v। अब दो केस पॉसिबल है, एस्ट्रोनॉट में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है या एस्ट्रोनॉट में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा हो, नेट फोर्स, net force. So there are two possibility, net force is acting on the astronaut once he is separated out, or there is no net force. Tell me which case is there, in this case क्या होगा, this one or this one, choose कीजिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन में हिंट है कि एस्ट्रोनॉट स्मॉल स्पेसशिप से बाहर निकला है। सो एस्ट्रोनॉट हैज कम आउट ऑफ अ स्मॉल स्पेसशिप, स्मॉल मतलब that spaceship has no gravitational attraction, it's very small, so it has no gravitational attraction, यानी स्पेसशिप की वजह से जो फोर्स है वो तो जीरो हो गया, स्पेसशिप की वजह से कोई फोर्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन बाकी, assume that there are no nearby star, आसपास कोई स्टार भी नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एस्ट्रोनॉट पे नहीं लग रहा है, there is no gravitational force on the astronaut due to any reason. So there is no force मतलब हम क्या कहेंगे, ये केस नहीं है, नेट फोर्स जीरो होगा। सो आई विल चूज दिस कि देयर इज नेट फोर्स इज जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो हमारा आंसर क्या है, जीरो, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो आंसर इज एक्सेलरेशन जीरो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर एक्सेलरेशन जीरो के जगह यहां लिखा होता कि वेलोसिटी क्या जीरो होगा कि नहीं, बताइए, क्या वेलोसिटी जीरो होगा या नहीं।
v होगा 0 या कांस्टेंट, कौन सा चूज करें? तो आप चूज करोगे कांस्टेंट। क्यों चूज करोगे कांस्टेंट? क्योंकि when the astronaut separate हुआ था, when the astronaut got separated, it had astronaut had some instantaneous velocity, उसके पास एक instantaneous velocity था और उसी velocity से वो constantly move करता रहेगा forever in a straight line, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है उसको रोकने के लिए। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा फॉरएवर इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज देयर इज नो फोर्स टू स्टॉप। तो आंसर विल बी, इन केस ऑफ a velocity, yes it will have a velocity, but there will be no acceleration क्योंकि because there is no force। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। class work questions to do right now and then give you answer in the comment section। I will quickly show you the questions। These are very easy level, conceptual level but interesting questions। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर रिविजन, ये आपके रिविजन में भी हेल्प करेगा कि आपने लेक्चर कितने अच्छे से समझा है, कितने अच्छे से ग्रास्प किया है लेक्चर को। रिविजन में भी हेल्प करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम लोग।